Welcome back, students. Let's start sum number 4, exercise 6.3. In this sum, we are given a figure and we have to find angle SQT. SQT means this angle. So you can see two triangles, triangle PRT and triangle TQS. तो आप देख रहे हैं दो ट्रायंगल हमें दे रखे हैं। इस ट्रायंगल के हमारे पास दो एंगल हैं, इससे हम इसका तीसरा एंगल निकाल सकते हैं। तो वी आर गिवन टू एंगल्स and using angle sum property we can find angle number 3. So let's move to triangle PRT. In triangle PRT, angle 1 plus 2 plus 3 equals to 180 degree. And what's the reason? 1 2 3 का जोड़ 180 क्यों है? क्योंकि ट्रायंगल के तीन एंगल का सम 180 डिग्री होता है। रीजन इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल. 1 is 95 degree, 2 is 40 degree. We can find angle 3 here. 95 plus 40, that is 135, plus angle 3 equal to 180 degree. Angle 3 equals to 180 degree minus 135 degree. It will be 45 degree. एंगल सम प्रॉपर्टी से हमारे को एंगल 3 की वैल्यू मिल गई 45 डिग्री. अब हमें दूसरी ट्रायंगल की तरफ जाना पड़ेगा. ये एंगल 3 है, इधर हम एंगल 4 ले लेते हैं, इसको 5 और इसको 6 लिख देते हैं. 3 और 4 कैसे एंगल हैं? ये दो लाइन एक दूसरे को काट रही है, आमने सामने बनने वाले एंगल वर्टिकली अपोजिट है. तो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 एंड द रीजन इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. नाउ you should move in triangle TQS. In triangle TQS, angle 4 plus angle 5 plus angle 6 equals to 180 degree. And the reason is again angle sum property of a triangle. Angle 4 is we had found angle 3 equal to 45 degree. The angle 3 means 45 degree. Value of angle 4 is 45 degree. So value of angle 4 45 degree plus 5 means 75 degree plus angle 6 equal to 180 degree. 45 plus 75, that is 120 degree. 120 degree plus 6 equal to 180 degree. Angle 6 will be 180 degree minus 120 degree, that is 60 degree. And angle 6 means angle SQT. So therefore angle SQT equal to 60 degree. So you see very easy sum. Let's start next sum. Sum number 5. PQ is perpendicular to PS. It is given. This is PQ and this is PS. They are perpendicular, meaning that this angle is 90 degree. Then PQ is parallel to SR. This PQ is parallel to SR. अब देखो आप PQ और SR पैरेलल है. PQ parallel to SR given. अगर PQ और SR पैरेलल है तो ये एंगल यहाँ से यहाँ तक और ये एंगल अल्टरनेट एंगल हो गए. Therefore angle PQR equal to angle QRT, and the reason is alternate interior angles. PQR means x plus 28 degree. X plus 28 degree equal to QRT means 65 degree. So x is 65 minus 28. Angle x equals to 37 degree. We have to find two angles x and y, and we have got the angle x. तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की हेल्प से हमने पहले एंगल x निकाल लिया.
इजी था। अब y निकालने के लिए हमें ट्रायंगल PQS में जाना पड़ेगा। तो देखो आप, PQ is perpendicular to PS, it is given। अगर PQ परपेंडिकुलर है तो ये एंगल 90 का हो गया। इसको मैं नाम दे देता हूँ एंगल 1। Therefore एंगल 1 इक्वल टू 90 डिग्री। अब आप ट्रायंगल PQS में आ जाओ। इन ट्रायंगल PQS, ट्रायंगल के तीन एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल 1 x और y का सम 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस x प्लस y इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंड द रीजन इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। वैल्यू ऑफ 1 परपेंडिकुलर है 90 डिग्री। x हमने निकाला था पहले 37 डिग्री प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। तो 90 प्लस 37 दैट इज 127 प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। तो y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 127 डिग्री। तो 180 में से हम 127 को कम कर देंगे तो इट विल बी 53 डिग्री। दो एंगल निकालने थे x और y। x is 37 degree and y is 53 degree. So this is the way you will do sum number 5. Let's start sum number 6. In the given figure, the side QR of triangle PQR is produced to point S. QR को point S तक बढ़ाया हुआ है। Bisector of angle PQR, ये एंगल PQR है, ये इसका बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर मीन दो बराबर हिस्सों में बांटता है। दैट मीन्स एंगल 1 और 2 बराबर हो गए। बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल PQR एंड एंगल PRS। एंगल PRS का ये बाइसेक्टर है RT। इसका मतलब एंगल 3 और 4 बराबर हो गए। इस एंगल को हम नंबर 5 और इसको नंबर 6 लिख लेते हैं। आपको प्रूव करना है एंगल QTR। QTR एंगल 5। एंगल 5 आपको QTR ट्रायंगल में मिलेगा। हाफ ऑफ एंगल QPR ये आपको ट्रायंगल PQR में मिलेगा। इसका मतलब हमें दो ट्रायंगल इसमें जाना पड़ेगा, QTR में भी और PQR में भी। तो अब देखिए आप, QT bisects angle PQR, therefore angle 1 equal to 2. TR bisects angle PRS, therefore angle 3 equals to 4. तो पहले हम ट्रायंगल PQR में चले जाते हैं। इन ट्रायंगल PQR, PQR ट्रायंगल को अगर हम देखें तो ये इसका एक्सटीरियर एंगल है PRS। एक्सटीरियर एंगल PRS किसके बराबर होएगा? ये आप इसके पड़ोसी एंगल को छोड़ दो, इसको छोड़ दो, तो ट्रायंगल के बचे हुए एंगल P और Q के बराबर होएगा। P का मतलब एंगल QTR प्लस एंगल PQR, एंड द रीजन इज exterior angle equal to sum of interior opposite angles। ट्रायंगल की किसी साइड को प्रोड्यूस करते हैं तो बाहर जो एंगल बनता है ये एक्सटीरियर एंगल है। इसके पड़ोसी को आपने छोड़ दिया, अंदर के बचे में इन दो एंगल्स के बराबर हो गए। PRS को हम लिख सकते हैं 3 + 4। QPR that means 6, PQR means 1 + 2। जब हम ट्रायंगल PQR को देखेंगे तो इसका एक्सटीरियर एंगल होगा एंगल 4। तो हम 3 की वैल्यू 4 पुट कर देते हैं, 4, क्योंकि 3 और 4 इक्वल है। एंगल 6 + 1 + 2। और जब PQR ट्रायंगल में देखेंगे तो अंदर हमें एंगल 2 मिलेगा। TQR के अंदर एंगल 2 आएगा, 1 नहीं आएगा, इसलिए हम 1 की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं, क्योंकि 1 और 2 इक्वल है। तो 1 की वैल्यू पुट कर दी 2 और 2 की 2 ही रहेगी।
रीजन एंगल 1 इक्वल टू 2, एंगल 3 इक्वल टू 4, ये रीजन हो गया। तो ये हो गया डबल ऑफ 4 इक्वल टू एंगल 6 प्लस डबल ऑफ एंगल 2। ये हमारे पास एक स्टेटमेंट तैयार हो गई। अब आप ट्रायंगल TQR में जाओ। सिमिलरली इन ट्रायंगल TQR, जब हम ट्रायंगल TQR में जाएंगे तो इसका एक्सटीरियर एंगल है 4। आप इसका साथ वाले एंगल को छोड़ दें, बाकी के अंदर के दो एंगल है 5 और 2। तो एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 5 प्लस एंगल 2। सिमिलरली लिखा है भाई, वही रूल लगाया आपने, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। एंगल 4 इसका एक्सटीरियर एंगल है, क्योंकि साइड को बढ़ाने से जो एंगल मिलता है वो एक्सटीरियर एंगल होता है। तो हमने QR को ऐसा बढ़ाया, एंगल 4 एक्सटीरियर एंगल है, साथ वाला एंगल हमने छोड़ दिया, 5 प्लस 2 के बराबर है। स्टेटमेंट नंबर 1 में लेफ्ट साइड के अंदर डबल ऑफ 4 है और इसमें सिंगल ऑफ 4 है। इन दोनों को कंपेयर करने के लिए इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 2, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर डबल ऑफ 4 है, यहाँ सिंगल 4 है। इससे कंपेयर करने के लिए दोनों के पास डबल ऑफ 4 होगा तो दोनों कंपेयर हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा अपना डबल ऑफ 4, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर इसको किया डबल ऑफ 5 प्लस डबल ऑफ 2, इसको भी 2 से किया, इसको भी किया, इसको भी 2 से किया। ये स्टेटमेंट नंबर 2 हो गई। स्टेटमेंट नंबर 1 में लेफ्ट हैंड साइड इज डबल ऑफ 4, स्टेटमेंट नंबर 2 में भी लेफ्ट साइड डबल ऑफ 4 है। दोनों स्टेटमेंट की लेफ्ट साइड इक्वल है, इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट की राइट साइड भी इक्वल होगी। तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 डबल ऑफ 4 से डबल ऑफ 4 कैंसिल हो गया, तो एंगल 6 प्लस डबल ऑफ 2 इक्वल्स टू डबल ऑफ 5 प्लस डबल ऑफ 2। इसकी लेफ्ट साइड से इसकी लेफ्ट हैंड साइड छोड़ दी, तो इसकी राइट साइड एंगल 6 प्लस डबल ऑफ 2, इसकी राइट हैंड साइड डबल ऑफ 5 प्लस डबल ऑफ 2 के बराबर आ गई। डबल ऑफ 2 से डबल ऑफ 2 कैंसिल हो गया, एंगल 6 मींस एंगल QPR इक्वल टू डबल ऑफ एंगल 5 मींस एंगल QPR। जब आप ये 2 इधर लाएंगे तो ये बन जाएगा हाफ, तो हाफ ऑफ एंगल QPR इक्वल टू एंगल QTR। हमें प्रूव ये करना था, एंगल QTR इक्वल टू हाफ ऑफ QPR। तो दिस इज द वे you will do this.